Welcome all of you in our lecture number 2nd on lesson number 2nd trigonometry 1. In previous lecture we have learned introduction part of trigonometry and science of trigonometric function in different quadrant. Now the next concept is range of cos theta and sin theta. In this figure, consider a unit circle with center at the origin O. Let measure of angle AOB, measure of angle AOB equal to what? Theta. Let point P of xy be any point on the unit circle and terminal arm OB, then distance of OP equal to what? 1, because here यूनिट सर्कल है इसलिए उसकी रेडियस कितनी है 1 है. Therefore by distance from x square plus y square equal to 1. That's mean x square is less equal 1 and y square is less equal 1. We know that any point on the perimeter of a unit circle can be expressed as cos theta and sin theta. Look at cos theta is nothing x coordinate of this point. Now if a point lies on the confluence of a unit circle, we can say that the maximum x value it can take positive 1. Therefore here x lies between minus 1 to positive 1. Minus 1 is less equal x is less equal 1, and here also y. Minus 1 is less equal y is less equal 1. We can say that the maximum x value it can take positive 1 and minimum x value it can take negative 1. But we know that x coordinate is cos theta and y coordinate is sin theta. Therefore minus 1 is less equal cos theta is less equal 1 and y coordinate is sin theta. Minus 1 is less equal sin theta is less equal 1. This is the range of cos theta and this is the range of sin theta. Cos theta किस में लाई कर रहा है minus 1 to 1 में, और sin theta भी किस में लाई कर रहा है minus 1 to 1 में. ये cos theta की रेंज है, ये sin theta की रेंज है. ये जो हमारा फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. बिकॉज ये यूनिट सर्कल है, देयरफॉर यहाँ पे रेडियस कितनी है 1. सो हियर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. द नेक्स्ट कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ स्पेसिफिक एंगल. सो फर्स्ट एंगल इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 0 डिग्री. अभी हमें ये 0 डिग्री के सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब साइन 0, कॉस 0, कॉट 0, सेक 0, कोसेक 0, ये सब हमें अभी फाइंड आउट करने हैं. ये देखो इन दिस डायग्राम द मेजर ऑफ एंगल एक्स ओ ए, सपोज यहाँ पे x है, एक्स ओ ए, एंगल एक्स ओ ए इन स्टैंडर्ड पोजिशन बी 0. कितनी डिग्री पे है 0 पे है. इट्स टर्मिनल आर्म, ये देखो ये हमारा टर्मिनल आर्म है. इट्स टर्मिनल arm ray OA intersect the standard unit circle in which point? Point 1, 0. because ये 0 डिग्री का चल रहा है ना, 1, 0. एक्स एक्सिस पे यूनिट सर्कल है इसलिए यहाँ पे 1 है, और ये एक्स एक्सिस पे y क्या रहता है हमेशा 0 रहता है, तो ये पॉइंट इज 1, 0. Hence therefore first coordinate x equal to what? First point is 1 and the y coordinate is second point is what? 0. X equal to 1 and y is equal to 0. X coordinate is nothing but cos theta and y coordinate is nothing but sin theta. So first find out, suppose cos 0 मतलब ये कौन सा है, x कोऑर्डिनेट रहता है ना. सो हियर x की वैल्यू कितनी है 1. सो cos 0 की वैल्यू कितनी है 1 है. नेक्स्ट इज sin 0 मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट रहता है, y कोऑर्डिनेट रहता है. y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0. सो sin 0 इक्वल टू 0. sin 0 की वैल्यू कितनी है
जीरो है। नेक्स्ट हम tan निकाल सकते हैं, tan जीरो, डेफिनेशन ऑफ tan इज y अपॉन x, y इज जीरो डिवाइडेड बाय x इज 1, जीरो अपॉन 1 इज जीरो, tan जीरो इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट इज कोसेक जीरो, कोसेक जीरो, कोसेक की डेफिनेशन क्या है, इज अपोजिट ऑफ साइन थीटा, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई की वैल्यू है जीरो, डिनोमिनेटर में जीरो, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं क्या, कभी नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखना है, नॉट डिफाइंड, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज सेक जीरो, सेक जीरो, डेफिनेशन ऑफ सेक जीरो इज 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है 1, सो हियर 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। एंड द लास्ट इज कॉट जीरो, cot 0, definition of cot is opposite of tan, x upon y, x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 0, डिनोमिनेटर में 0 है तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या लिखना है, नॉट डिफाइंड, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ये है कब, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 0 डिग्री, 0 डिग्री पे कौन कौन सी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक पे है, ये देखो यहाँ हमने अभी सभी फाइंड आउट करने, कॉस 0 है 1, साइन 0 है 0, tan 0 है 0, कोसेक 0 है नॉट डिफाइंड, सेक 0 इज 1 एंड कॉट 0 इज नॉट डिफाइंड। नाउ नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 90 डिग्री और पाई बाय 2 रेडियन, 90 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, पाई बाय 2। In this figure, measure of angle XOA, measure of angle XOA in standard position be pi by 2, because यहाँ पे 90 डिग्री चल रहा है ना, यहाँ पे देखो ये हमारा राइट एंगल है, ये देखो हमारा ये 90 डिग्री है। Its terminal arm ray OA, यहाँ पे देखो ये रे OA intersect the standard unit circle in point what, point 0,1, बिकॉज ये y एक्सिस पे है तो यहाँ पे x एक्सिस कितना है 0, ये यूनिट सर्कल है यहाँ पे इसलिए 1 है। सो इंटरसेक्ट द स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल इन पॉइंट 0,1, देयरफॉर हियर x इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट पॉइंट इज 0 एंड y इक्वल टू सेकंड कोऑर्डिनेट इज 1। नाउ फाइंड आउट साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री मीन्स व्हाट, साइन पाई बाय 2 ना, साइन पाई बाय 2, साइन मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट रहता, y कोऑर्डिनेट रहता, तो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, सो हियर साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी है 1। नेक्स्ट फाइंड आउट कॉस पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 में कॉस मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट रहता, x कोऑर्डिनेट रहता, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 0, सो कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी है 0। नेक्स्ट फाइंड आउट tan pi by 2, definition of tan is y upon x, here 1 upon x की वैल्यू है 0, डिनोमिनेटर में 0 तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो क्या लिखना है, नॉट डिफाइन, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज कोसेक पाई बाय 2, कोसेक की डेफिनेशन है 1 अपॉन y, 1 अपॉन 1 मतलब कितना है यहाँ पे 1। नेक्स्ट इज सेक पाई बाय 2, डेफिनेशन ऑफ सेक इज 1 अपॉन x, so here 1 upon 0, so ये क्या है, not defined, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। एंड नथिंग बट लास्ट इज cot, cot pi by 2, definition of cot opposite of tan, x upon y, x upon y, x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 1, so 0 upon 1 is equal to 0। ये किसके है सब, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 90 डिग्री। नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 180 डिग्री और पाई रेडियन, 180 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं, पाई रेडियन। इन द फिगर मेजर ऑफ एंगल XOA, XOA इन स्टैंडर्ड पोजीशन बी पाई, यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड पोजीशन बी पाई, इट्स टर्मिनल आर्म रे OA intersect the standard unit circle in which point, point -1 0, -1 0, so here x equal to what, -1 and y equal to what, 0, -1 लेफ्ट हैंड साइड में है, so यूनिट सर्कल है, so here -1 और x एक्सिस पे, तो यह y क्या है 0, so हम निकाल सकते हैं अभी साइन पाई मतलब साइन कौन सा कोऑर्डिनेट रहता है सेकंड, y की वैल्यू क्या है इतनी 0, so साइन पाई की वैल्यू कितनी है 0। नेक्स्ट इज कॉस पाई मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -1, सो यह cos पाई इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट फाइंड आउट
tan pi. Definition of tan is y upon x. So 0 upon -1. So 0 upon -1 is equal to 0. So tan pi is equal to 0. Next is suppose cosec. Cosec pi. Cosec is opposite of sin. 1 upon y. 1 upon 0. डिनोमिनेटर में 0 है तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं क्या? नहीं. So here not defined. Next is sec pi. Sec pi 1 upon x. 1 upon -1 equal to what? -1, because big sign is minus, so 1 upon -1 is equal to -1. So here sec pi is equal to -1. And the last is cot pi. Definition of cot is x upon y. -1 upon 0. डिनोमिनेटर में 0 है तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते. नॉट डिफाइंड. ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 180 डिग्री. ओके, नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 270 डिग्री, और उसको रेडियन में क्या बोलते हैं? 3 पाई डिवाइडेड बाय 2 रेडियन. सो हियर मेजर ऑफ एंगल XOA. सपोज हियर XO एंड A in standard position be 3 pi by 2 means 270 degree. Its terminal arm ray OA intersect the standard unit circle in which point? Here point is 0 because ये y axis पे है, so x axis is 0 and here -1. So intersect the unit circle in point 0 -1. So here x की वैल्यू कितनी है? 0 और y की वैल्यू कितनी है? -1. आपके पास x कोऑर्डिनेट आ गया, y कोऑर्डिनेट आ गया, तो आप अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हो. sin 3 pi by 2, cos 3 pi by 2, tan 3 pi by 2, cosec 3 pi by 2, sec 3 pi by 2 और cot 3 pi. सिमिलरली हमने जैसे 0 डिग्री का किया, 180 डिग्री का किया, आप सिमिलरली वैसे ये फाइंड आउट कर सकते हैं. ये आप घर पे भी कर सकते हैं, सेल्फ कर सकते हैं आप ये. ओके, नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 360 डिग्री, और उसको रेडियन में क्या बोलते हैं? 2 पाई रेडियन. यहाँ पे देखो 360 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे 90 90 90 90 मतलब 1 कंप्लीट रोटेशन होने के बाद ये फिर से 0 डिग्री पे आ रहा है. यहाँ पे देखो, यहाँ से फिर यहाँ पे वो कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ से 0 डिग्री पे वो फिर से 360 डिग्री हो रहा है, मतलब 1 कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट हो रहा है. सिंस 360 degree and 0 degree are coterminal angles. The trigonometric ratios of 360 are same as those of 0 degree. मतलब 0 डिग्री के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो सब किसके हैं? 360 डिग्री के भी वही है. हमने अभी जो फर्स्ट निकाला ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 0 डिग्री, 0 डिग्री की जो वैल्यूज है, साइन 0, साइन कॉस 0, वो जो वैल्यू है वो सब किसके है? 360 डिग्री के भी वही वैल्यू है. बिकॉज 360 डिग्री एंड 0 डिग्री आर कोटर्मिनल एंगल्स. बिकॉज वो कौन से है? कोटर्मिनल एंगल्स है. हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा डेफिनेशन ऑफ कोटर्मिनल एंगल. मतलब 0 डिग्री की जो वैल्यूज है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वो सब किसके है? 360 डिग्री के भी वही है. मतलब ये कौन सा था हमारा? 0 डिग्री का कौन सा था? सपोज हमारा साइन 0 की वैल्यू कितनी थी? 0. वैसे ही साइन 360 डिग्री की वैल्यू की कितनी भी होगी? 0 ही होगी. कॉस 0 की वैल्यू कितनी थी? 1. सो कॉस 360 डिग्री वैल्यू की भी कितनी रहेगी? 1 ही रहेगी. ये सब कौन से? वो भी आप निकाल सकते हैं अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 360 डिग्री. नाउ नेक्स्ट इज trigonometric functions of 120 degree और 2 pi upon 3 radian. 120 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं? 2 pi upon 3. ऑफकोर्सली 120 डिग्री मतलब ये कहाँ पे लाई कर रहा है? कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है? 0 to 90, सेकंड में 90 to 180. ऑफकोर्सली 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है. यहाँ पे हमें फर्स्ट सर्च करना है कि एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई के पॉइंट्स क्या हैं. बिकॉज हमारे पास यहाँ पे x भी नहीं है और y भी मालूम नहीं है. अगर x और y पता नहीं तो हम साइन पाई और कॉस टैन ये नहीं निकाल सकते. सो फर्स्ट हमें x और y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं. सो हियर इन दिस फिगर मेजर ऑफ एंगल AOB, मेजर ऑफ एंगल AOB इन स्टैंडर्ड पोजिशन बी 2 pi upon 3. That's mean 120 degree.
its terminal arm OB intersect the standard unit circle in point P of XY. यहाँ पे देखो फिगर में दिख रहा है point P of XY which lies in second quadrant. Of course 120 डिग्री है तो second quadrant में है. Draw segment suppose PQ. Draw segment यहाँ पे देखो draw segment PQ perpendicular to x axis. Draw segment PQ perpendicular to what? X axis. Then OQ equal to what? OQ equal to x and PQ equal to what? Y. PQ equal to y. Now triangle OPQ. Now triangle OPQ is a right angle triangle in which measure of angle QOP is equal to 60 degree and OP equal to what? 1. OP equal to 1. Therefore measure of angle QPO equal to what? 30 degree. Therefore OQ equal to what? OQ equal to half of OP. Half of OP. OP कितना है? 1 है. Therefore 1/2 into 1 is equal to half. Therefore but what is OQ? OQ क्या है हमारा? X है. So here X की वैल्यू कितनी है? half. Therefore by the distance formula क्या था हमारा डिस्टेंस? ये सब हमने स्कूल में पढ़ा है. बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1. हियर x इज 1/2. 1/2 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1. देयरफॉर 1/2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो हियर y स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये 1/4 यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1/4. बट हियर डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 into 1 4 minus 1 divided by 4. सो हियर 3/4. y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 3/4. लेकिन हमें सिर्फ y चाहिए, सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. सो हियर y एंड हियर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट तो नहीं, तो ये क्या जाएगा? √3 और 4 का स्क्वायर रूट कितना है? 2 बिकॉज 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4. सो y की वैल्यू कितनी है? प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2. मतलब हमारे पास अभी कौन से वैल्यू आ गए? x की वैल्यू क्या पे? x इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 एंड y इक्वल टू प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2. लेकिन ये x और y एक तो प्लस में रहेंगे, नहीं तो माइनस में रहेंगे. दोनों साइन तो नहीं हो सकती. लेकिन हमारा जो P लाई है, हमारा P कहाँ पे लाई कर रहा था? यहाँ पे देखो हमारा जो P लाई कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में. हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन से साइन रही थी. x की कौन सी साइन रही थी, y की कौन सी साइन रही थी. सो हियर P लाइज इन विच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा P लाई कर रहा है. सो सेकंड क्वाड्रेंट में x और y के कौन कौन से साइन रहते? x हमेशा क्या रहता? लेस रहता, मतलब निगेटिव रहता. और y हमेशा क्या रहता? पॉजिटिव रहता, मतलब y इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन 0. x की वैल्यू निगेटिव रहती और y की वैल्यू पॉजिटिव रहती. सो हियर x क्या है हमारा? निगेटिव है ना. सो निगेटिव -1/2 बिकॉज P लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/2 एंड y क्या है हमारा? पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव लेना पड़ेगा √3 डिवाइडेड बाय 2. सो हमारे पास अभी x और y कोऑर्डिनेट तो आ गए. अब हम बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. तो फर्स्ट फाइंड आउट sin 2π/3 मीन्स sin 120 डिग्री. sin 2π/3 मतलब sin कौन से कोऑर्डिनेट रहता? y कोऑर्डिनेट रहता ना. सो y की वैल्यू कितनी है? √3 डिवाइडेड बाय 2. मतलब sin 2π/3 की वैल्यू कितनी है? √3 डिवाइडेड बाय 2. नेक्स्ट इज cos 2π/3. 2π/3 मीन्स व्हाट? x ना. x कितना है? -1/2. सो हियर cos 2π/3 की वैल्यू कितनी है? -1/2. नेक्स्ट इज tan 2π/3. Definition of tan is y/x.
y is root 3 divided by 2 whole divided by x is minus 1 upon 2. 2 will be cancelled and the root 3 divided by minus 1 is minus root 3 because big sign is minus. So here tan 2 pi upon 3 is equal to minus 3. Next is cosec. Cosec 2 pi upon 3. Cosec definition 1 upon 1 root 3 divided by 2. दैट्स मीन ये डिनोमिनेटर में 2 है, ऊपर जाएगा तो ये न्यूमरेटर में 2 आ जाएगा और रूट 3 आ जाएगा. सो कोसेक 2 पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3. नेक्स्ट इज सेक. सेक 2 पाई अपॉन 3. 2 पाई अपॉन 3 1 अपॉन एक्स. सेक की डेफिनेशन 1 अपॉन एक्स की क्या वैल्यू है माइनस 1 अपॉन 2. ये क्या हो जाएगा फिर न्यूमरेटर में जाएगा तो 2 अपॉन minus 1. 2 upon minus 1 is nothing but minus 2. So here sec 2 pi upon 3 is equal to minus 2. And the last is cot 2 pi upon 3. Cot की definition क्या है x upon y. So minus 1 upon 2 whole divided by root 3 divided by 2. So here 2 cancel minus 1 upon root 3. So here trigonometric function of 120 degree. नाउ सिमिलरली आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 225 डिग्री और उसको रेडियन में क्या बोलते हैं 5 पाई अपॉन 4 रेडियन. सिमिलर अभी जो मैंने 120 डिग्री का निकाला वैसे आप सिमिलरली आप ट्राई कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 225 डिग्री. नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ नेगेटिव एंगल. अभी तक जो हमने देखे थे 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री 120 डिग्री ये सब कौन से थे पॉजिटिव एंगल थे. अब हमें देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल. इफ द मेजर ऑफ एनी एंगल इज पॉजिटिव रियल नंबर वी मे कॉल इट पॉजिटिव एंगल. अगर वो पॉजिटिव रियल नंबर एंगल रहेगा तो वो क्या होगा पॉजिटिव एंगल. सिमिलरली इफ द मेजर ऑफ एन एंगल इज नेगेटिव रियल नंबर वी मे कॉल इट इज नेगेटिव एंगल. अगर वो नेगेटिव रियल नंबर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे नेगेटिव एंगल. इन दिस फिगर measure of angle XOA, measure of angle XOA equal to theta and measure of angle XOB equal to minus theta. यहाँ पे देखो ये जो थीटा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो वो कौन सा रहता पॉजिटिव रहते. और ये देखो यहाँ पे ये जो थीटा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. हमने पिछले चैप्टर में देखा अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो कौन सा एंगल रहता नेगेटिव एंगल. अगर वो एंटी क्लॉकवाइज में है तो वो क्या रहता पॉजिटिव एंगल. देयरफॉर हियर मेजर ऑफ एंगल XO इज इक्वल टू पॉजिटिव थीटा एंड हियर मेजर ऑफ एंगल XOB इज इक्वल टू नेगेटिव थीटा. एंड द टर्मिनल आर्म यहाँ पे देखो ये इसका टर्मिनल आर्म है. टर्मिनल आर्म OA एंड OB इंटरसेक्ट द स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल इन पॉइंट व्हाट P. यहाँ पे पॉइंट P ऑफ XY P में और यहाँ पे सपोज ये सिमिलर हो गया. यहाँ पे मैं Q लेती हूँ. यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है P पॉइंट पे और यहाँ पे Q पॉइंट पे. द x कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q आर सेम. x कोऑर्डिनेट P एंड Q आर सेम एंड देयर y कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन. साइन में क्या है वो अपोजिट. यहाँ पे देखो y पॉजिटिव में है तो यहाँ पे क्या है निगेटिव में है बिकॉज ये कौन सा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. सो हियर y कोऑर्डिनेट ये आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन. देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर XY. कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर XY and the coordinate of Q are x, minus y. P के पॉइंट है XY और Q के पॉइंट है x, y. Using the definition of trigonometric function. Using the definition of trigonometric function. यहाँ पे definition हमें use करनी है. So here cos of माइनस थीटा बिकॉज ये नेगेटिव एंगल चल रहा है ना. सो ये कॉस ऑफ माइनस थीटा इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिया है. माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू. सपोज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू इज नथिंग बट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू इज नथिंग बट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी also equal to x coordinate of
P, और कौन सा है वो कोऑर्डिनेट, वैसे का वैसे, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, सो ये एज इट इज वैसा ही है, वो कौन सा रहता, cos थीटा, वो cos थीटा ही रहता ना, हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट कौन सा रहता, cos थीटा रहता, और सेकंड कोऑर्डिनेट कौन सा रहता, sin थीटा, लेकिन यहाँ पे x कोऑर्डिनेट ऑफ q एंड x कोऑर्डिनेट ऑफ p आर सेम, देयरफॉर फर्स्ट नेगेटिव एंगल cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, मतलब ये चेंज नहीं हो रहा है, cos ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है, cos थीटा। नेक्स्ट इज साइन ऑफ माइनस थीटा, नेगेटिव एंगल चल रहा है ना, तो यहाँ पे मैंने माइनस लिया है। ये देखो y कोऑर्डिनेट ऑफ q, y कोऑर्डिनेट ऑफ q आल्सो इक्वल टू, ये क्या पे कहाँ पे है, y कोऑर्डिनेट ऑफ q इज इक्वल टू क्या है, माइनस y है ना, यहाँ पे देखो y कोऑर्डिनेट ऑफ q कितना है, माइनस y, मतलब माइनस y क्या है हमारा, y कोऑर्डिनेट, यहाँ पे तो सेम है, y कोऑर्डिनेट ऑफ p, y कोऑर्डिनेट ऑफ p है ना, यहाँ पे देखो, और y कोऑर्डिनेट ऑफ p, y को क्या बोलते हैं हम, साइन थीटा, बिकॉज हियर y कोऑर्डिनेट ऑफ कितना है, माइनस y, सो हियर माइनस साइन, सो हियर नेक्स्ट इज साइन ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस साइन थीटा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। नाउ फ्रॉम दीज टू result, the other trigonometric function of minus theta can be expressed in term of theta. So next हम find out कर सकते हैं tan of minus theta. tan of minus theta, definition of tan is sin of minus theta ना, because यहाँ negative angle है, so यहाँ पे minus ही लेना पड़ेगा, cos of minus theta. So sin of minus theta के यहाँ पे हमने अभी find out किया, क्या है, minus sin theta upon cos थीटा, और इसकी माइनस साइन थीटा अपन cos थीटा क्या आ जाएगा, माइनस tan थीटा, सो हियर tan ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट, माइनस tan थीटा। नेक्स्ट इज कोसेक, कोसेक माइनस थीटा, डेफिनेशन ऑफ कोसेक इज 1 अपॉन साइन ऑफ माइनस थीटा, और 1 अपॉन साइन ऑफ माइनस थीटा कितना है, माइनस साइन थीटा, सो 1 अपॉन माइनस साइन थीटा क्या आ जाएगा, माइनस cosec theta. We know that 1 upon sin theta is equal to cosec, और here minus sin, so here minus cosec theta. Next is sec minus theta. Definition of sec is 1 upon cos minus theta. So here 1 upon cos of minus theta कितना है, cos theta है, और 1 upon cos theta क्या रहता, sec theta. So sec of minus theta is equal to sec theta, and the last is cot minus theta is equal to 1 upon tan of minus theta. So 1 upon minus tan theta, because हमने आप भी find out किया है, tan of minus theta equal to what, minus tan theta. So 1 upon minus tan theta equal to what, minus cot theta. So here cot of minus theta की वैल्यू कितनी है, माइनस cot theta. ये सब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल्स। Okay, now we will stop here. In the next lecture we will see solved example and exercise 2.1. Thank you.